ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਕਲ ਆਪਣਾ ਅਲਿਪਸ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਔਰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤਿੰਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਕੋਨਿਕ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਟੌਪਿਕ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਰਕਲ ਕੋਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਬਾਊਟ ਸਰਕਲ। ਜੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੈਂਟਰਸਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੈਂਟਰਸਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਟਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0। E ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਸੈਂਟਰਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਲ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਅਸੈਂਟਰਸਿਟੀ E is equal to 1, ਅਲਿਪਸ ਦੀ ਅਸੈਂਟਰਸਿਟੀ E less than 1 ਔਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਟਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ E greater than 0 ਔਰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ E is equal to greater than E is equal to 0। ਆਹ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਟਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MCQ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਅਸੈਂਟਰਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 0 ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸਰਕਲ, ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਜਾਂ ਅਲਿਪਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਸ ਵਰਟਿਕਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਰਕਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਲ 'ਚ ਸਿੰਪਲੀ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਜਸਟ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਸ। ਹੋਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਵਰਟਿਸ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਸ ਨਾ ਫੋਕਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਸਰਕਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਲ ਦੀ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 0 0 ਹੋਣ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ 0 0 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਰ ਰੇਡੀਅਸ ਅਗਰ ਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 0 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ। ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਨੇ? ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0, 0। ਕਲੀਅਰ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? x ਮਾਈਨਸ 0 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ y ਮਾਈਨਸ 0 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ x ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ y ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਆਈ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? 0 0 ਬੋਲ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਅਗਰ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਣੀ, ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਲ, ਦਾ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ। ਅਗਰ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਰੀਅਲ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਅਗਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋ ਸਰਕਲ।
कोई भी सर्कल नहीं बनेगा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ अगर रेडियस ही नेगेटिव होगी तो सर्कल कोई बनना ही नहीं हैगा। तो सर्कल की आ जाएगा नो सर्कल आ जाएगा, कोई पॉसिबल सर्कल नहीं फिर बनना अगर रेडियस अपनी की होगी नेगेटिव होगी कि रेडियस का स्केयर नेगेटिव होगा। ठीक है जी। तीजे नंबर पर आप गल करिए, तीजे नंबर पर आप गल कर सकते हैं अगर आर स्केयर इक्वल टू 0 हो गया या आर इक्वल टू 0 हो गया। आर स्केयर कदों 0 हुआ जो आर 0 हुआ तो कुछ भी कह सकते हैं आर स्केयर 0 कह लो या आर 0 कह लो। तो उदों की बनेगा अपने को पॉइंट सर्कल बनेगा, पॉइंट सर्कल। ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਰਕਲ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਸਰਕਲ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नो सर्कल, सर्कल कदों नहीं बनेगा अगर आर स्केयर लैस दैन 0 होएगा। तो पॉइंट सर्कल कदों बनेगा अगर आर स्केयर या आर इक्वल टू 0 होगा। ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ। क्लियर जी ਇੱਥੋਂ तक मूव करिए आगे। अगर प्लीज क्लियर है तो दस दो एक बार कि क्लियर लिख दो, क्लियर टाइप कर दो अगर क्लियर है तो फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है जी, ओके चलिए फिर आप गल करांगे सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म किहड़ी हुंदी है जिहदे विच कोई ना कोई सेंटर होएगा। मान लो अपने को सर्कल है, ठीक है जी। ये तो सेंटर हुण अपने को कोई ना कोई वैल्यू होएगी यानी कि एच के। अगर एच के अपने को सेंटर होएगा, रेडियस अपने को आर होएगी, तो इनू आप बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म किवें लिखी जाएगी अगर सेंटर की अपने को एच के, रेडियस रेडियस अपने को की है आर, तो सेंट्रल फॉर्म हो जाएगी एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस वाई माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये अपने को होगी जी सेंट्रल फॉर्म। ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੋਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰਮ। अगर अपने को इत्थे एच के की बन जान, एच के इक्वल टू अगर 0 0 हो जाए तो ये सेंट्रल फॉर्म की चेंज हो जाएगी, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म च चेंज हो जाएगी क्योंकि सेंटर अगर 0 0 हो जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है जी। अगर एच के 0 हो गए तो ये चेंज हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਹੈਗਾ कि अगर अपना आर 0 हो गया, रेडियस 0 हो गई तो ये की बन जाएगा पॉइंट सर्कल बन जाएगा। पॉइंट सर्कल वो कितना बनेगा, मान लो एक बसा पॉइंट बनेगा, रेडियस तो 0 है पर फिर भी है तो ये सर्कल। एक अगर आप पॉइंट लिखता और देखो पॉइंट लगाता तो एक पॉइंट की हो गया आ पॉइंट लगाता आ पॉइंट लगाता, ये सारे की नहीं आपदे आप सर्कल ने बट इन्हों की रेडियस की है 0 है। तो इस दे विच भी सेम स्टेटमेंट होएगी अगर रेडियस 0 तो अपना जिहड़ा वो होएगा सर्कल होएगा वो पॉइंट सर्कल बन जाए। क्लियर होगी जी, ये गल भी क्लियर। मूव करिए अगे। ओके हुण आपां गल करते हैं जनरल फॉर्म। तीन फॉर्म्स आप दो फॉर्म इदों पहला पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड एंड सेंट्रल फॉर्म। तीजे नंबर पर अपने को आउंदी है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म की होएगी वो अपने को होएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨਿਕ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਨਿਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਲਾਈਡਸ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਨਿਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਬਟ ਇਹ ਲਈ ਕੋਨਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨਿਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੋਨਿਕ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ मतलब इस दी वो आ वाली होगी। ठीक है जी, ये तो हम अगले एक दो पेज से सानू बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा कि आपां लई किवें। ओके ठीक है जी, जनरल फॉर्म होगी अपने। मूव करिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸਰਕਲ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ SIRCL RNI ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇयर हो गया ਇਹਨਾਂ ਚ ਨਾ। ठीक है जी, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो अपने को सब तो पहला जनरल इक्वेशन की होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी आ जनरल होएगी फॉर्म इसकी सर्कल। तो हम इत्थों सेंटर देखने, तो सब तो पहले हम आप गल करते हैं सेंटर की, तो सेंटर अपने को की आएगा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। अपने को की होंगे सर्कल होंगे माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है जी, ये अपने को सेंटर होंगे। जिमें आप एक एग्जांपल ले लीए, जिमें अपने को है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर अपने को इक्वेशन है तो ये अगर मैं सेंटर देखा तो की होंगे माइनस हाफ, यानी कि ਇਹਦਾ हाफ 4 ਦਾ हाफ किया 2 माइनस 2 और ਇਹਦਾ हाफ माइनस 3 माइनस आएगा और ਇਹਨਾਂ ਦਾ हाफ कर देना है x ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ हाफ और y ਦੇ ਨਾਲ वाले ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ। ठीक है जी, जैनू आप लिख सकते हैं सीधा सीधा माइनस जी माइनस एफ। इदा भी लिखा जा सकता है माइनस ऑफ जी माइनस ऑफ एफ, क्योंकि इतने की होंगे 2g होंगे तो 2g आप 2 छड़ देंगे तो कला जी लै लेंगे तो कला एफ लै लेंगे तो नैगेटिव कर देंगे तो वो अपने को बनेगा सेंटर माइनस जी माइनस एफ या माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। इदा भी आप डील कर सकते। ठीक है जी, ये आ गई गल। तो फिर अपने को रेडियस की हो जाएगी, दूजे नंबर पर गल करांगे रेडियस की। रेडियस रेडियस हो जाएगी अपने को रूट के अंदर माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस के विच आएगा सी। आ तुसी बिल्कुल ध्यान दे विच रखना हुंदा कि सी जिहड़ा हुंदा ये माइनस दा हुंदा। आ दोनों प्लस दे जैनू आपां एक होर तरीके नाल भी लिख सकते हैं। सेंटर अपना की सी माइनस सी, यानी कि माइनस जी दा स्क्वायर प्लस माइनस एफ दा स्क्वायर माइनस सी। ये ऑल ओवर की बन गया, ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी दा रूट। ठीक है जी, ये अपने को आ गया रेडियस। क्लियर, सर्कल एंड रेडियस डन। सॉरी सर्कल नहीं, सेंटर एंड रेडियस डन हो गया जी। एक बार रिपीट कर देने, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई और रेडियस आएगी सेंटर का पहले सेंटर का स्केयर दूजे सेंटर का स्केयर माइनस का सी। सी आ हुंदा जी कांस्टेंट अपने को। ठीक है जी, क्लियर, मूव करिए। ओके, फिर आप गल करते हैं नेचर ऑफ सर्कल की। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ x ਸਕੁਅਰ प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 और इस तो आप ਲਈ ਸੀ रेडियस यानी कि ਆ ਵਾਲੀ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। हम ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੀ g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c, यानी कि रेडियस ਦੇ इक्वल ही है ना। अगर g स्क्वायर f प्लस f स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो एक ही बड़ तो बड़ा हो जाएगा, सी तो बड़ा हो जाएगा। द रेडियस ऑफ सर्कल इज रियल, जी रेडियस होएगी वो की होएगी रियल होएगी, तो सर्कल भी की होएगा रियल होएगा, सर्कल भी रियल होएगा और जो रेडियस है रेडियस ऑफ सर्कल भी की होएगी रियल होएगी। अगर ये पॉजिटिव आ जाती है पूरी, अपन पता ही है अगर ये पॉजिटिव पूरी आएगी तो सर्कल ने रियल ही बनना है, तो रेडियस ने भी रियल बनना है। इस गल तो कोई शक नहीं है। ठीक है जी, आप पहला करते होंगे ना डिस्क्रिमिनेट मैथड बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बनता सी तो रूट रियल बनते होंगे सीगे। ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 बनेगा तो रेडियस भी रियल एंड सर्कल भी रियल। अगर ये बनेगा 0 ਦੇ इक्वल, 0 ਦੇ इक्वल बनेगा तो पॉइंट सर्कल बन जाएगा, क्योंकि 0 ਦੇ इक्वल हो गया तो रेडियस ही 0 हो जाएगी सारी। अगर ये 0 ਦੇ इक्वल हो गया सारी चीजें 0 ਦੇ इक्वल हो जाती है तो रेडियस 0, रेडियस 0 तो पॉइंट सर्कल। ठीक है जी, सिंपली पॉइंट एक पॉइंट बन जाएगा। क्लियर, फिर तीजे नंबर तक नेगेटिव हो जाती है तो इमेजिनरी सर्कल या वर्चुअल सर्कल। ठीक है जी, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लैस दैन 0 हो जाती है तो इमेजिनरी सर्कल, क्योंकि अंदर की बन जाएगा फिर नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा तो उल्टा च आ जाएगा, उल्टा च आ गया तो एक ही हो जाएगा अपने को इमेजिनरी सर्कल। क्लियर हो गए तीनों पॉइंट, नेचर ऑफ सर्कल सीगा। ठीक है जी, जनरल फॉर्म तो लिया गया।
है एक आप स्टैंडर्ड फॉर्म तो लैते सी 3 पॉइंट, एक आप लै ले जनरल फॉर्म तो 3 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਰੇਡੀਅਸ 0 ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਓਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਊ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕੋਨਿਕ ਸਰਕਲ ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਨਿਕ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਕੋਨਿਕ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਸੌਰੀ ax ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to g थे आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर भी आएगा a भी रहेगा a स्क्वायर b स्क्वायर ਆ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਨਿਕ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ax ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ by ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2gx ਪਲੱਸ 2fy ਪਲੱਸ c ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ a ਤੇ b x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਔਰ y ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ the coefficient of x square and y square must be equal ਇਹ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਹੈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਐਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚ ਹੋਗੀ ਜਾਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਚ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚਲੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਚ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ h ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ h ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ xy ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ xy ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਟ ਮਸਟ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਟਰਮ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ xy ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੀਨਸ h 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ h 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ xy ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਕੋਨਿਕ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ y ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ h 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ xy ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਓਕੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟਸ ਔਨ ਸਰਕਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਔਨ ਸਰਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ on x axis ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਸੈਪਟ on x axis ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਸਿਰਫ x axis ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆਫ x axis ਦੇਖੋ x axis ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ on x axis ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ x axis ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 root of g square minus c ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟਸ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ ਕਿ x ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2g² - c ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ax² + by² + 2gx + 2fy + c = 0 ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ g² - c ਦਾ ਰੂਟ into 2 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਔਨ x ਐਕਸਿਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਸੈਪਟ on y axis ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ y axis ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਲ ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ y axis ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 root of f² - c ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ x ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ 2gx ਤਾਂ g ਸੀਗਾ g² - c ਹੁਣ ਆਪਾਂ y ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ y ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਉਹ ਕੀ ਸੀ f² - c ਦਾ ਰੂਟ into में 2 ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ g²
सॉरी जी स्केयर इक्वल टू सी हो जाता है तो सर्कल अपना टच करूगा, सर्कल टच करूगा एक्स एक्सिस में। अगर जी स्केयर इक्वल टू सी हो जाता है तो सर्कल टच करूगा एक्स एक्सिस में। दूजे नंबर पे अगर एफ स्केयर इक्वल टू सी हो जाता है तो सर्कल टच करूगा वाई एक्सिस में। ठीक है जी। फिर तीजे नंबर पे अगर जी स्केयर इक्वल टू एफ स्केयर तिने आपस इक्वल हो जाते हैं, जी स्केयर इक्वल टू एफ स्केयर इक्वल टू सी, तो सर्कल अगला टच करूंगा बोथ बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों ਨੂੰ टच करूंगा एक्स एंड वाई। ये किवें करूंगा, ये ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਦੇ ਸੀ ਆ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਬਣੂ ਐਵੇਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ y ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ x ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਔਨ ਬੋਥ ਐਕਸਿਸ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ। ਆ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਟੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰੂ। ਆ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਫੋਰ ਫਾਈਂਡ ਇੰਟਰਸੈਪਟ। आई थिंक तुसी सारे नोट्स बना रहे हो नाल दी नाल, तो प्लीज इनू नोट करते रहो या स्क्रीनशॉट ले लो। फोर फाइंड इंटरसेप्ट ये आ गई अपने को टू चेक इंटरसेप्ट, टू चेक टच, टच बोल दो टच। कितने टच करूंगा, एक्स एक्सिस ऊपर करूंगा तो आ कंडीशन, वाई एक्सिस ऊपर टच करूंगा तो आ कंडीशन, अगर दोनों एक्सिस पे टच करूंगा तो आ वाली कंडीशन। क्लियर हो गया जी? प्लीज दस दो कि इतना क्लियर है, डन है ना, क्लियर? प्लीज एक बार ही क्लियर टाइप कर दो, अगर क्लियर है तो फिर आप आगे मूव करते हैं, कोई दिक्कत ना रह जाए बस सर्कल दे विच। ठीक है जी, एक बार टाइप कर दो प्लीज। ओके क्लियर। पैरामीटर ऑफ सर्कल बिल्कुल सिंपल पैरामीटर होंगे नहीं सर्कल दे। किहड़ी इक्वेशन होंदी है सर्कल दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो की पैरामीटर हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, ए कॉस थीटा बोल दो, नहीं आर कॉस थीटा होगी, आर कॉस थीटा। अगर इधर आर है तो आर, अगर इधर ए होएगा तो ए कॉस थीटा। वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। पुट करके देख लो ये की बन जाएगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अपने को की हो गए एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा की हो गए पैरामीटर हो गए किसते, सर्कल। आप हर एक दे पैरामीटर बड़े अच्छे तरीके नाल कीते ने, तो सर्कल दे भी कर लो, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर? डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, तो डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल की होएगी, डायमीटर फॉर्म का मतलब हो गया अगर अपने को आ कोई सर्कल है, ਇਹਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਮਤਲਬ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੋਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ x1, y1 और इधर पॉइंट है x2, y2। ठीक है जी, तो की होएगी डायमीटर की इक्वेशन x माइनस x1 y माइनस y1, सॉरी x माइनस x2, फिर प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी? डायमीटर तो इक्वेशन किवें बन गया सर्कल की, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो आ x1 y1 पॉइंट, x2 y2 पॉइंट, की आ जाएगा x माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x2, यानी कि पहला पॉइंट x का, दूजा पॉइंट x का, फिर प्लस y माइनस y1 पहला पॉइंट, y माइनस y2 दूजा पॉइंट इक्वल टू आएगा 0। ये होंगी अपने को सर्कल की इक्वेशन डायमीटर फ्रॉम डायमीटर। ठीक है जी, क्लियर? ओके चलो जी, हम आप मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस वाल। बहुत हो गया अपने कंसैप्ट अज दे, ये क्वेश्चन भी जरूरी ने करने का नाल नाल। तो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस आप दसनी है, रेडियस दसों तो पहले सेंटर फाइंड करने पैणगे। तो लिखो क्वेश्चन की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। तो आंसर पहला आना चाहिए जी मैनू। तो सेंटर की हो गया जी, सेंटर हो गया एक्स का कोफिशिएंट तो है ही नहीं 0 0, ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਹਾਫ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ -6 ਦਾ 6 ਉਹਦਾ ਹਾਫ 3, यानी कि 0 3 हो गया सेंटर। सी की वैल्यू भी नहीं है, तो आर अपने को की होंगे जी का स्केयर प्लस एफ का स्केयर माइनस सी।
जी का स्केयर जी का 0 है, एफ का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर और सी भी अपने को की है 0। तो ओवरऑल आ गया 3 का स्केयर, ओदा रूट स्केयर ना रूट कैंसिल, तो आ गई रेडियस 3। तो ऑप्शन नंबर बी 3 राइट आंसर। ठीक है जी, जिन्होंने भी 3 आंसर दिता है बिल्कुल राइट ने, 3 आंसर इज राइट। आप इन्ना मतलब हौली हौली नहीं करना, एग्जाम के आप बिल्कुल डायरैक्ट वे ना करा कि 3 आ गया तो बस 3 सेंटर ही बनेगा, कोई दोनों चीज मिसिंग ने तो 3 आना सीगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। सेंटर दसना जी, इस क्वेश्चन का जल्दी ना रिप्लाई कर दो, बिल्कुल इन्ना तो आप इन्ने तो दस देवांगे, बिल्कुल ओरली क्वेश्चन है, बिल्कुल विदाउट पेन है जो क्वेश्चन, सिंपली हाफ एंड नैगेटिव करना है। इसका हाफ किया -1 ਉਹਦਾ -1, इसका हाफ किया -2 ਉਹਦਾ नेगेटिव किया 2, तो 1,2 सेंटर आ गया अपने को, ऑप्शन नंबर सी 1,2 राइट। कलर बहुत सोने नहीं, देखो 1 2 3 4 5 कलर ने। ठीक है जी, जिन्हों जिन्हों पसंद है कलर ले लो, तो अपना सिलेक्ट कर लो 5 कलर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस दसनी है आप इस सर्कल की, तो की इक्वेशन है एक्स स्केयर, पहले हम सैट कर लो, एक्स स्केयर में लगा दो वाई स्केयर -6x -4y -12 इक्वल टू 0। जल्दी ना दसो जी आंसर की आएगा, दसो की आंसर आएगा जी। तो सब तो पहले सेंटर फाइंड कर लो, सेंटर आएगा नेगेटिव ऑफ हाफ 3, नेगेटिव ऑफ हाफ 2, 3 टू सेंटर आ गया। रेडियस रेडियस की होएगी रूट 3 का स्केयर 9 प्लस 4 का 2 का स्केयर 4 माइनस माइनस च आएगा सी, तो सी ऑलरेडी पहले ही माइनस च है, -12 तो हो गया 13 और 12 25, रूट 25, रूट 25 यानी कि 5। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया जी, जिसने भी सी ऑप्शन दिता है वो बिल्कुल राइट ने। ठीक है जी, जिन्हों का सी आया बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय। डायमीटर दसना आप सर्कल का, बिल्कुल बेसिक जे क्वेश्चन ने जी। ठीक है जी, बट इन्हों के एक क्वेश्चन जरूर बनता है, आपको सेंटर फाइंड करना हो, चाहे रेडियस फाइंड करनी हो, चाहे आप डायमीटर फाइंड करना हो, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, जिन्ने वध तो वध करांगे उन्नी ही अपनी प्रैक्टिस होएगी, उन्ना ही आपको टाइम का भी बेनीफिट मिलेगा। तो डायमीटर दसना है, तो सब तो पहले सर्कल लिखो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो सब तो पहले तो यही चेक करना होता कि सर्कल बन रहा या नहीं बन रहा, तो ये सर्कल बन रहा है, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल ने, एक्स वाई भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16/9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनू आप लिख सकते हैं 4/3 का स्क्वायर। तो रेडियस कितनी बन गई जी, रेडियस बन गई 4/3, आ वाली रेडियस होंगी है ना आर का स्क्वायर, बट आपको की पूछा डायमीटर, डायमीटर की होंगे 2r, कि रेडियस का ट्वाइस, तो डी डायमीटर की हो जाएगा 8/3, ऑप्शन नंबर सी 8/3 राइट। ठीक है जी, तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिता है वो बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ फार फ्रॉम वाई एक्सिस इज द सेंटर। देखो की कहता है, एक अपने को सर्कल है, ठीक है जी, अपने को की है फ्रेम है, आ वाई एक्सिस होंगी है, आ एक्स एक्सिस होंगी है, तो कहता भी आ जिहड़ा इस सर्कल का सेंटर है ये वाई एक्सिस तो, आ वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस तो कितनी दूरी ते, कितनी फार है, हाउ फार फ्रॉम वाई एक्सिस इज द सेंटर ऑफ द कर्व, इस कर्व का जिहड़ा सेंटर है वो वाई एक्सिस तो कितनी दूरी ते, तो आप फाइंड करनी है। सिंपली सब तो पहले आपको सेंटर चाहिए होंगे, तो सेंटर फाइंड कर लो, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 10x -6y -55। ठीक है जी, तो हम आपको 2 नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलवेज कोफिशिएंट की होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो अगर आप 2 एम ही रखी रखा तो अपने सेंटर च फर्क पै जाएगा, तो आपको 2 की करना पैना है डिवाइड करना पैना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया 5x, ये हो गया -3y, ये हो गया -55/2। हम ठीक है जी,
तो हम सेंटर लिखो की आएगा नेगेटिव यानी कि -5/2 ये आ जाएगा प्लस का 3/2 तो सेंटर अपने आ गए जी माइनस का 5/2 और सॉरी अपना सर्कल भी यही नहीं बनेगा ये तो जस्ट एक आप एग्जांपल लेती सी सर्कल अपना हम चेंज हो जाएगा देखते हैं की चेंज होएगा सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ सर्कल भी अपना पॉइंट के हिसाब ਨਾਲ बनेगा तो आप जस्ट एक एग्जांपल लेता सी शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ अपने को आ गया तो ਕਿਹੜੇ पॉइंट आ गए x नेगेटिव y पॉजिटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव तो आ वाला कोऑर्डिनेट बन गया सेकंड कोऑर्डिनेट बन गया अपने को है ना x कितना -5/2 यानी कि x कितना -2.5 बना लो जी इतने लिख लो हाफ 2 -1 -2 -3 इतने कितने होएगा यानी कि इधर और इधर लिख लो 1.5 1 2 1 2 इधर 1.5 और इधर 2.5 इतने के कितने होएगा सेंटर आ ला लो जी सेंटर ठीक है जी केड़ा आ गया -2.5 और -1.5 बट हुण आपां सिंपली कीता होया है y एक्सिस तो y एक्सिस ते की पॉइंट होएगा 0 y दा की है -1.5 इनू करांगे आ तो दोनों 0 हो जाएंगे तो -2.5 -1.5 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा -2.5 यानी कि -2.5 बोल सकते हैं ए ऑप्शन क्लीयर हो गया ना पर 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੀ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ डिस्टेंस दसो x एक्सिस तो की डिस्टेंस होंगी है y का कोऑर्डिनेट बीटा y एक्सिस तो की आएगी x का कोऑर्डिनेट अल्फा तो उवें तरह ही हम y एक्सिस तो दसनी है तो x का कोऑर्डिनेट -2.5 ठीक है जिन्होंने ये कंसेप्ट नहीं पता और 2D वाली क्लास जरूर देखो ठीक है जी क्लियर क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल दो सर्कल ने इन्हां दे सेंटर्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ x ਸਕੁਅਰ plus y ਸਕੁਅਰ plus 2x plus 4y minus 3 equal to 0 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਖ ਲਓ C1 ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਏਗਾ -1 -2 फिर दूसरा लिख लो x स्क्वायर plus y स्क्वायर plus 2x minus 8y सॉरी प्लस 2x माइनस 8x ये क्या कर दिया हमने प्लस 2x माइनस 8x यानी कि माइनस का 6x करता है ना तो अगली लाइन में करते हैं ये उन्होंने डबल दे रखा है अपने को x स्क्वायर फिनिश कर रखा है तो ये हो जाएगा ऑल ओवर माइनस का 6y प्लस 7 इक्वल टू 0 ये सेंटर C2 कितने आ गए 3,3 तो यानी कि एक सेंटर एक अपने को सर्कल है एक सर्कल है इन्होंने दोनों के सेंटर्स के विचकार की आप डिस्टेंस दसनी है सीधा पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे 3 - 1 ये आ जाएगा 3 ऑफ -1 4 का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ -2 3 -2 5 का स्क्वायर 25 तो 16 प्लस 25 का रूट ये कितना होगा जी 47 √41 कितना होएगा √41 3 4 का स्केयर ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ 7 ਤੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ 49 ਦਾ 7 ਹੁੰਦਾ 7 ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ है ना माइनस का 8x लग देखिए 4 4 ਤੇ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 50 ठीक है जी ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ 2x ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ होना चाहिए फिर अपने को इतने बन जाएगा 4 बन जाएगा तो 4 प्लस ये भी बन जाएगा 25 25 ते 25 50 बन जाएगा √50 √50 बन जाएगा √50 आएगा 7 तो प्लस कुछ ज़्यादा तो शायद ए ऑप्शन बन जाएगी तो तुम कैलकुलेट कर लो आई थिंक ए ऑप्शन बननी चाहिए √50 अगर आप पॉइंट टच कैलकुलेट करा क्लियर इतने 2x नहीं सीगा जी इतने मिस्टेक सी क्वेश्चन नंबर 7
Find the value of k for which the equation x square plus y square plus 4x minus 2y minus k 0 represent a point circle. तो point circle कितना होएगा? point circle होएगा रेडियस 0 बनेगी यानी कि g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इक्वल टू की हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लगा दो जी g कितना आएगा? g आएगा 2 का स्क्वायर प्लस f कितना आएगा 1 माइनस 1 आएगा माइनस 1 का स्क्वायर और c कितना माइनस ऑफ माइनस के इक्वल टू 0। कितना हो गया 4 के कितना हो गया प्लस 1 5 और ये हो गया प्लस था के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ 5। डी ऑप्शन माइनस 5। ठीक है जी। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ g ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੀ 2 ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ g ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ 2 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ g ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2g ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ 2 ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। Question number 8. The equation ax square plus 2xy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 represent a circle. The condition will be ਇਹ ਸਰਕਲ ਕਦੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ a ਇਕੁਅਲ ਟੂ b, a ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। a ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਟ c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰੋਂਗ। ਦੂਜੀ f ਇਕੁਅਲ ਟੂ g h ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, f ਇਕੁਅਲ ਟੂ g ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਗ। a ਇਕੁਅਲ ਟੂ b, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ h ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਜੀ ਹਾਂ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ a ਤੇ b ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, h 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ xy ਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, c ਆਪਸ਼ਨ, ਔਰ ਆ ਵੀ ਰੋਂਗ। ਤਾਂ c ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ c ਦਿੱਤਾ, ਵੈਲ ਗੁੱਡ ਆਂਸਰ। Question number 9. The equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c represent a real circle. Real circle कदों बनूगा दसो जी। always बनूगा कि real circle, या फिर a option बनेगी या b बनेगी या c बनेगी या d बनेगी। ਤਾਂ always ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ real circle। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ radius ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਜਾਂ 0 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਮੇਜਨਰੀ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਮੇਜਨਰੀ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ g ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ f ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ c ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਰੀਅਲ ਸਰਕਲ। ਇਕੁਅਲ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਹੀ, ਇਮੇਜਨਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰੀਅਲ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰੀਅਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲ ਬਣੇਗਾ ਬਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਰੀਅਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। Question number 10. Find the equation of circle with center at origin and radius 5. Very easy question. सेंटर 0 है, 0 0 है, ओरिजिन ते है 0 0 ते है, रेडियस कितनी है 5। तो बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म लगा देवांगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन सीगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगी, जिन्ना का भी ए है बिल्कुल राइट आंसर। आ दोनों तो सर्कल एक मिनट देखो आ सर्कल तो बन ही नहीं सकते क्योंकि एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट 1 है, वाई स्केयर का 0 है, ये तो सर्कल है ही नहीं। ए ते बी इक्वल ही नहीं है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ए ਤੇ b ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ y ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, x ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, x ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ r ਦਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ r ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ
बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ਆਪਾਂ बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ प्लस y ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r नहीं ਹੁੰਦਾ, r ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद द इक्वेशन। रेडियस फाइंड करनी है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सब तो पहला सेंटर फाइंड कर लो, की आएगा 2, की आएगा 5, सेंटर 2 5। रेडियस का फॉर्मूला की होंगे, ये होंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਕੁਅਰ यानी कि 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4, ਐਫ ਸਕੁਅਰ यानी कि 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 25 ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ 4। ਆ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4, ਤਾਂ 4 ਨਾਲ 4 ਕੈਂਸਲ, 25 ਦਾ रूट कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी 5 यूनिट राइट आंसर। इन्हों का भी सी ऑप्शन है, बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which pass through 5 9 and center at 2 5। ਤਾਂ ਪਾਸ ਥਰੂ ਕਰਦਾ ਐਚ ਕੇ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ, ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, एच के गिवन है 5 9 और सॉरी एच के गिवन है 2 5, सेंटर है 2 5, पास करता है 5 9 तो की आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम पास चो करता है पुट कर देंगे, 5 पुट करांगे तो 3 का स्क्वायर, इतने पुट करांगे 9 तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हो गया 9 ते 16 25, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, आर स्क्वायर 25 आ गई। तो इसका स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 25। तो 25 ना 25 कैंसिल, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y और प्लस का 4। देख लो जी कि ऑप्शन मैच कर रही है। माइनस का 4x एक ऑप्शन ची माइनस का 4x है, वो तो किसी भी नहीं है, आ भी कैंसिल आ भी कैंसिल आ भी कैंसिल, बी ऑप्शन राइट। सिर्फ एक ऑप्शन ची माइनस का 4x है और किसी भी माइनस का 4x ही नहीं है। हाँ बिल्कुल इजी काम हो गया अपने लिए, बी ऑप्शन है। पॉइंट लाइज ऑन सर्कल, पॉइंट लाइज ऑन सर्कल किवें करांगे जी आप पॉइंट, देखो सर्कल अपने को अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अगर ग्रेटर दैन 0 हो गया तो पॉइंट की हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा आउटसाइड, पॉइंट की हो जाएगा आउटसाइड। हाँ टेंजेंट कितने 2 टेंजेंट। हम आउटसाइड देखो कितने बनेगा, इतने बन सकता है, इतने बन सकता है, इतने बन सकता है, कितने भी बन सकता है आउटसाइड तक। टेंजेंट कितने 1 ते 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते। ठीक है जी। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लैस दैन 0 ये नैगेटिव हो गया तो पॉइंट रह जाएगा इनसाइड। इनसाइड तो आप कदे भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, साइड और नो टेंजेंट, नो टेंजेंट या फिर 0। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0 तो पॉइंट की कर जाएगा, पॉइंट लाई ऑन सर्कल, लाई ऑन सर्कल, पॉइंट कर जाएगा सर्कल ऊपर लाई, जिन्हें कि इतने हो सकता है, इतने हो सकता है, इतने तो एक जगह तो एक टेंजेंट जाएगा तो सिर्फ एक टेंजेंट, 1 टेंजेंट। ठीक है जी, क्लियर किन्नो गल्ला। चलो दसो फिर क्वेश्चन, द पॉइंट 1 4 लाइज ऑन द सर्कल, करवा दो जी, 1 4 पुट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2, 1 पुट किया 1, 4 पुट किया 16 माइनस 2 माइनस 16 प्लस 2, 16 और 16 कैंसिल, माइनस 2 ना माइनस प्लस 2 कैंसिल, तो 1 बच गया, एक ही आ गया ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0 आ गया था आउटसाइड हो गया सर्कल का, बी ऑप्शन आउटसाइड सर्कल बिल्कुल राइट है जी, बी ऑप्शन। टेंजेंट कितने होंगे प्लीज दसो जल्दी, टेंजेंट टेंजेंट कितने होंगे फिर, टेंजेंट
0 1 2 3 4 कितने होंगे ਜਾਂ इनफाइनाइट 1 2 3 तक 2 टेंजेंट होंगे 2 टेंजेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट 0 0 लाइज ऑन द सर्कल तो दसो जी 0 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y की होएगा 0 पुट कर दो 0 प्लस 0 माइनस 0 और 0 इक्वल टू 0 तो पॉइंट की कर देगा ऑन द सर्कल लाई ऑन द सर्कल और टेंजेंट कितने हो जाएंगे दसो जी जल्दी टेंजेंट अगर पॉइंट लाई कर दे तो टेंजेंट की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट हो जाएगी 1 टेंजेंट की वैल्यू 1 जल्दी ना दसो जी पॉइंट 62 लाई ऑन द सर्कल इतने लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 36 कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 माइनस 4 माइनस नहीं 6 दूनी 12 माइनस 12 और माइनस 8 माइनस 36 36 और 36 कैंसिल और हो गया ये माइनस का 20 माइनस का 16 लेस देन जीरो हो गया था नेगेटिव हो गया था पॉइंट हो गया इनसाइड हो गया जी इनसाइड ऑप्शन नंबर ए इनसाइड टेंजेंट दसो जी जल्दी टेंजेंट टेंजेंट आ जाएंगे बिल्कुल शून्य यानी कि 0 शून्य टेंजेंट 0 क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द वैल्यू p so that the equation of circle of radius 7 अब p ਦੀ वैल्यू किਵੇਂ फाइंड करेंगे अब रेडियस अपन 7 दे रखी है ठीक है जी तकी लगा देंगे g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इक्वल टू रेडियस तो लगा दो g स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर c की जगह तो माइनस p ही है और रेडियस आर आएगा 7 ਉਹਦਾ स्केयर कर देंगे हो जाएगा 49 कितना हो गया 16 प्लस 25 प्लस p इक्वल टू 9 p की वैल्यू कितनी आ गई 25 16 41 8 8 आ गई 8 ठीक है जी ओके 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 माइनस p सीगा 8 नहीं आएगी 8 माइनस 8 आ गई किसी भी मेरे पीछे लग के 8 कह देता बता नहीं माइनस 8 ये तो ला बच्चा है माइनस 8 आने का कैसे p is equal to minus 8 find the equation of circle whose end of diameter दे रखे ने equation of circle find करनी है ये हम दे equation of circle diameter को x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equal to कर दो जी x minus x1 कितना 3 x minus x2 कितना 2 प्लस y minus y1 कितना 2 इक्वल टू y minus 5 तो मल्टीप्लाई करनी है बस सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया जी आंसर ठीक है जी इन्हों का भी आंसर आ जाए बिल्कुल राइट और टाइप कर दिया जी कमेंट बॉक्स के मेरा आंसर फाइंड कर क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल इज 1 minus 6 फाइंड द अदर एंड एक ही कहते हैं कि अपन रोंग बना लिया लास्ट क्वेश्चन है अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान ਨਾਲ समझो ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 1 - 6 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ x2 y2 ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ सेंटर तो आप सेंटर फाइंड करके मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिए तो सेंटर फाइंड करो जी इसको सेंटर क्या आएगा 3/2 और माइनस द 5/2 यही आएगा सेंटर
ये आएगा 3/2 माइनस द 5/2 लगा दो जी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला x2 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2 और दूसरे पे लगावांगे y2 माइनस का 6/2 इक्वल टू माइनस का 5/2 2 में 2 कैंसिल x2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 और 2 और 2 कैंसिल y2 की वैल्यू कितनी आ गई -5 प्लस 6 1 आ गई पॉइंट 2,1 दूजे एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ सेंटर इन्हों का मिड पॉइंट होएगा सेंटर फाइंड किया मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया x2 y2 फाइंड कर क्लियर क्लास इज ओवर कितना दी लगी क्लास बोरिंग या अमेजिंग क्लियर हो गया सर्कल का कुछ जी सर्कल क्लियर होया थोड़ा बहुत ठीक है जी कल नूं आपां इहदे सॉरी कल भी तो अपनी हॉलीडे रहेगी कल और परसों भी ड्यू टू पटवारी एग्जाम ठीक है जी कल भी अपनी हॉलीडे रहेगी तो ठीक है कोशिश करांगे कि कल आप एक मॉक टेस्ट रख लीए ऑनलाइन विद टाइमर वो अपना मॉर्निंग च ही होएगा शायद आई थिंक मॉर्निंग टाइम च हो सकता है मे भी अगर पॉसिबल होया तो इनफॉर्म कर दिता जाएगा ग्रुप के कल मॉक टेस्ट अगर अपना वो यूट्यूब पर ही होएगा विद टाइमिंग होएगा ठीक है जी वो आप देख लाँगे अगर कल पॉसिबल होया था बट कल की वैसे हॉलीडे रहेगी और परसों की संडे की तो अपनी हॉलीडे होती है तो हम आप सीधा मंडे को ही मिलांगे ठीक है जी जिन्हों का भी पटवारी का एग्जाम है उन्होंने ऑल द बेस्ट ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਥੈਂਕ ਯੂ